ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی کے بعد میری دوست نے گھر دعوت پر بلایا۔ دعوت سے آ کر میرے شوہر نے میری دوست کی تعریف کی۔ اب میں محسوس کرنے لگی تھی کہ میرا شوہر میری دوست میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ جب ہی میں نے اپنے اس دوست سے ملنا بند کر دیا، لیکن ہوش میرے تب اڑے جب میرا شوہر شادی کر کے اسے گھر لے آیا۔ جب وہ میرے گلے لگتے بولی، اگر تم نے لڑائی کی تو میں تمہارے کالج کے افیئر شوہر کو بتا دوں گی۔ یہ سنتے ہی میں ڈر گئی، لیکن مجھے اس سے بہت نفرت ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے کھانے میں زہر ملایا اور اسے کھانے کے لیے دینے جیسے ہی اس کے کمرے کے باہر گئی، اندر سے باتوں کی آواز سنتے ہاتھ سے کھانا گر گیا، کیونکہ ماورا اور بدر کا بچپن اکٹھا گزرا۔ ان کے گھر ساتھ ساتھ تھے، چھت پر سے بھی راستہ تھا اور پچھلی طرف سے بھی ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے لیے راستہ یعنی دروازہ رکھا گیا تھا۔ ایک جیسا دونوں گھروں کا نقشہ تھا۔ عموماً لوگ ان کے گھر کو سگے بھائیوں کا گھر سمجھتے تھے اور اہل محلہ تو زیادہ تر انہیں سگے بھائی ہی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی ہی کہتے تھے۔ دونوں کا ایک ہی گاؤں تھا۔ میٹرک تک تعلیم بھی اکٹھی حاصل کی، پھر شہر اکٹھے پڑھنے آئے اور پھر حتیٰ کہ ایک ہی آفس میں جاب بھی مل گئی۔ بدر کا بڑا بھائی اور بدر تھے، جبکہ ماورا والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اسے بچپن سے ہی بچے بہت پسند تھے۔ اسے بہت شوق ہوتا کہ کاش میرے بھی اور بہن بھائی ہوتے۔ وہ جہاں بچہ دیکھتی، کسی مارکیٹ میں، پارک میں، وہیں رک کر اسے پیار کرنے لگتی۔ خاندان بھر کے بچوں کو پیار کرتی، ان کو گفٹس دیتی اور چاکلیٹس ہر وقت اپنے پرس میں رکھتی۔ جہاں بچہ نظر آتا اسے چاکلیٹ دیتی۔ وہ تو اکثر ماں کی پرواہ کیے بغیر باپ کو بھی دوسری شادی پر اکساتی رہتی کہ شاید بچے ہو جائیں۔ ماں اسے اکثر اس بات پر ڈانٹ دیتی کہ مردوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے، تیرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کیوں میری زندگی کو عذاب بنانا چاہتی ہے، کچھ شرم کر لے، کیوں باپ کو ایک نئی راہ دکھاتی ہے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتی کہ اگر پاپا نے اور شادی کرنی چاہی تو میں ان کا ساتھ دوں گی، اور ویسے بھی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ میں تو کہتی ہوں 3 اور کر لیں تاکہ ڈھیر سارے بچے پیدا ہو سکیں۔ آپ تو ایک قسم کی بانجھ ہیں، ایک بچہ ہی پیدا کر کے سٹاپ ہو گئی ہیں۔ پاپا کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ 3 اور بیویاں اور بچے بھی پال سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ خود شوہر کی دوسری شادی کروائیں، یہی شوہر کا بھلا اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ سیلفش بن کر سوچتی ہیں، آپ کو ان کی نسل بڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دادی کو کتنا شوق ہے کہ ان کے پوتے ہوں، مگر آپ ایک عورت ہو کر ان کے جذبات کا خیال نہیں کرتی۔ پلیز ماما، پاپا کے حال پر رحم کریں۔ دادی ان کو دوسری شادی کا کہتے کہتے بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اب تو آپ لوگ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، اب تو بیچاری دادی کی خواہش پوری ہونے دیں۔ وہ پاپا کی منتیں کرتی کرتی تھک گئی ہیں۔ حقداروں کا حق دینا چاہیے، دوسری شادی پاپا کا حق ہے۔ خاندان میں کتنی مثالیں ہیں کہ سوکنیں اکٹھی پیار اور محبت سے رہ رہی ہیں۔ کوئی بھی عورت سوکن کو خوشی سے برداشت نہیں کرتی، مجبوری میں ہی کرتی ہے۔ ماں نے دکھ سے جواب دیا۔ ماں کہتی اگر تیری شادی ہوئی تو تیرا شوہر کسی دوسری عورت کی طرف دیکھے گا بھی تو تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو میری ساس سے بھی زیادہ مجھے تانے دیتی ہے۔ ماورا بولی، ماما جائیداد میں سے ہی صرف حق دینا حصہ دینا نہیں ہوتا، ہر انسان کے ذمے دوسروں کے حقوق کے ساتھ فرائض بھی شامل ہیں۔ ماورا شوخی میں کہتی، ماما جب میری شادی ہوگی تو میں کم سے کم 6 بچے پیدا کروں گی تاکہ میرا بچوں کا شوق پورا ہو سکے۔ ماں ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، اپنے بس میں تھوڑی ہوتا ہے سب ارمان پورے کرنا۔ مرد شادی کے بعد اپنے بیوی بچوں کے پالنے اور اخراجات میں ایسے پھنس جاتا ہے کہ اسے یہ احساس تک نہیں رہتا کہ اپنی آمدنی میں سے شرعی حصہ والدین کو بھی دے۔ اس کے اپنے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے تو والدین کو تھوڑے بہت دے کر سرخرو ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی کمائی میں برکت نہیں رہتی۔ اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی کمائی سے حقداروں کو حق ادا کرنے کی تلقین کرے۔ ماں باپ کو بھی وقت دینا بھی حقوق میں شامل ہے۔ اگر وہ وقت نکال کر آتے جاتے حال احوال بھی پوچھ لیں، اپنے بہن بھائیوں سے بھی ملنا جلنا ترک نہ کریں، ان کا بھی حق ہوتا ہے۔ ماورا ماں سے بولی، دادی گاؤں میں پاپا کے لیے ترستی رہتی ہیں، مگر سوائے عید کے ایک دن کے اب پورا سال نہیں جاتی ہیں۔ آپ نے گاؤں والے لڑکے سے تو شادی کر لی، مگر وہاں رہنا گوارا نہ کیا۔ ان کو اپنی بچپن کی منگیتر چھوڑنی پڑی
जो बेशक पापा से 10-12 साल छोटी थी, मगर उसकी अभी तक शादी न हो सकी। बेचारी बूढ़ी हो रही है, वालदैन भी इसके मर गए और वही अब दादा दादी की खिदमत करती है। मावरा ने माँ से पूछा, मामा क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं पापा उससे शादी न कर लें? माँ ने बड़े फख्र से कहा कि तुम्हारे पापा को जवानी में तुम्हारी दादी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि एक शादी इधर भी कर ले, मगर तुम्हारे पापा टस से मस ना हुए। अब तो वो बूढ़े हो चुके हैं और वो भी बूढ़ी हो चुकी है। अब तो फिक्र वाला जमाना गुजर चुका है। बदरी मावरा को समझाती रहती कि आंटी के साथ ऐसी दिल शिकनी की बातें मत किया करो। बदर की माँ को इसका बाप गांव से ब्याह कर लाया था, जो अपने शौहर का मिजाज समझती थी और उसे कभी परेशान न करती। नया घर बनते ही उसने अपने सास ससुर को अपने साथ शहर में शिफ्ट कर लिया और इनकी बहुत खिदमत करती। वो अपने बेटे के लिए भी बहू अपनी नंद की बेटी को ब्याह कर लाई। इससे उसके ससुराल वाले उससे और ज्यादा खुश हो गए थे। बहू भी उसको अच्छी मिली। बहू के 2 बच्चे थे। मावरा की माँ चूंकि शहर की थी, वो अपने सास ससुर का आना पसंद न करती। मावरा का बाप अपनी बीवी के रवैये को समझता था, क्योंकि वो उसे पसंद करके अपने बचपन की मंगनी तोड़कर ब्याह कर लाया था। अब उसे हर सूरत निभाना था। शादी के 3 साल बाद मावरा पैदा हुई तो मावरा का बाप बहुत खुश हुआ, क्योंकि माँ उसे अपनी मंगेतर से शादी करने पर इसरार करती रहती थी। मावरा की माँ जब भी सास ससुर आते ऐसा रवैया रखती, मुंह बनाए रखती, अकड़ कर जवाब देती, गुस्से में रहती। उनको इतनी गैरत दिलाती कि वो वापस चले जाते। अलबत्ता अपने वालदैन को अक्सर अपने पास रखती कि भाभी उनकी इस तरह देखभाल नहीं कर सकती जितना एक बेटी कर सकती है। हालांकि इनकी बहू बहुत दबी हुई और खिदमत गुजार थी। मावरा को अपने नाना नानी और मामू से कोई खास लगाव न था, सिर्फ मामी उसे पसंद थी। उनके 3 बच्चे भी थे जिनको मावरा प्यार करती थी कि मामी की तरह वो भी दबे सहमे हुए थे। इनको सवाए माँ के कोई प्यार न करता, सब डांट फटकार ही करते रहते। मामू नाना नानी को छोड़ने आते और 2-3 दिन गुजार कर वापस जाते। 20 मिनट की ड्राइव पर उनका घर था। नाना नानी काफी लंबा अरसा गुजार कर जाते। नानी हर वक्त मावरा की माँ को इसके सास ससुर के खिलाफ करती रहती। मामू भी बढ़ चढ़ कर बोलते कि ईद का दिन अहम होता है और तुम चांद रात को ही शौहर के साथ गांव चल पड़ती हो, आखिर हमारा भी तुम पर हक है। वो बेबसी से कहती, अम्मा क्या करूं, हर बार कहती हूँ तो कहते हैं कि सारा साल तुम्हारे पास ही होता हूँ ना, कौन सा तुम वहाँ हफ्ता रहती हो, चांद रात को जाती हो, अगले दिन दोपहर का खाना खाते ही वापसी की रट लगा लेती हो, शाम की चाय भी नहीं पीती और सीधा मैके आती हो और रात को वालदैन के साथ वापस जाती हो। अगले दिन तुम्हारे भाई की फैमिली भी आ जाती है, खूब घूमते फिरते हो। मैंने कभी मना किया कि ना जाओ? मावरा की माँ माइंड करते हुए कहती, तो क्या हुआ, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मिलने आ जाते हैं। मावरा को गुस्सा आता कि मामा इन पर लुटाती भी बहुत थी। इनसे मामू पैसे भी मांगते रहते और नानी कपड़े जूते भी इनसे ही कह कर लेती। वो लोग इतने अमीर न थे और इतने गरीब भी न थे। इनको लूटने की आदत थी और माँ लुटा रही थी। जवाब में वो इस पर वारी सदके जाते। मावरा को बहुत गुस्सा आता कि वो लोग जब मामू के घर जाते तो इधर ही माँ खर्चे करती रहती, रोटियां दही तक माँ मंगवाती रहती। वो लोग माँ के सामने पैसों का रोना रोते रहते। माँ झट निकाल कर देती। इनकी बहू कभी कुछ न मांगती बल्कि मुरव्वत में मना करती रहती। मावरा को अपने पापा पर हैरत होती कि वो ससुराल वालों को तो घर में रखने पर कुछ न कहते, मगर अपने वालदैन को बीवी की नाराजगी के डर से घर न लाते। मावरा अक्सर नानी को टोक देती कि मेरी मामा को दादी के खिलाफ मत वरगलाया करें। वो थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा होती मगर बाज ना आते। मावरा बदर के घर ज्यादा वक्त गुजारती, इसके घर उसे रौनक लगती। वहाँ सारे उससे बहुत प्यार से पेश आते। बच्चे इसको जल्दी जाने न देते। बदर की माँ मावरा की माँ से दोस्ती करना चाहती थी, मगर मावरा की माँ इनसे ताल्लुक तो ना तोड़ती थी कि वो लोग गाहे बगाहे इनको कुछ ना कुछ पकाकर भेजते रहते थे और इनके काफ़ी काम भी संवार देते थे। अपना बिल जमा करवाने जाते, साथ इनका भी करवा देते। अपनी ग्रोसरी लेने जाते तो मावरा की माँ अपनी लिस्ट और पैसे इनके बेटे को पकड़ा देती। वो भी हर बार पूछ कर जाते। मावरा इनके घर में एक फैमिली के फर्द की तरह रहती। इधर ही दोपहर को बदर के साथ सो भी जाती, खाती पीती भी रहती। वो लोग बदर में और मावरा में कोई फर्क न रखते। अक्सर इसके लिए भी बदर के साथ चीज़ें ले आते।
बदर इसके घर बिला वजह कभी न आती, क्योंकि इसकी माँ उसे देखते ही सपाट से लहजे में पूछती, खैरियत है, किस काम से आई थी। वो सफाइयाँ देने लगती। मावरा उसे रोकने और बैठाने की कोशिश भी करती, मगर वो ना रुकती, ना कुछ खाती पीती, काम का बहाना करके चल पड़ती। मावरा को माँ पर गुस्सा आता रहता कि वो उनके घर जाती है तो बदर की माँ उसे खिलाए पिलाए बगैर नहीं जाने देती। इससे माँ के रवैये से शर्मिंदगी होती रहती। वो बाप को अक्सर दादी से मिलने गांव जाने पर उकसाती रहती। माँ उसे कोसती कि क्या मेरे सर पर मुसीबत लादना चाहती है, इन पेंडू लोगों की खिदमत मैं नहीं कर सकती। मावरा तब कर कहती, कभी किसी बीमारी में इलाज के लिए मजबूरी आ जाए तो आप सारा दिन के लिए काम वाली को रोक लेती हैं और इससे सारे काम करवाती रहती हैं। मावरा और बदर इकट्ठी एक ही स्कूल में पढ़ती रहीं, फिर एक ही कॉलेज में एडमिशन भी लिया। सब्जेक्ट मुख्तलिफ थे, इसलिए सेक्शन अलग अलग थे। को एजुकेशन था। मावरा का भाई ऑफिस जाते हुए इन दोनों को अपनी गाड़ी में छोड़ आता था। वापसी के लिए रिक्शा लगवाया हुआ था। दोनों ही पढ़ाई में अच्छी थीं और अक्सर मिलकर स्टडी करती थीं। बदर सुलझी हुई और संजीदा मिजाज लड़की थी, जबकि मावरा बहुत जोशीली और जज्बाती किस्म की लड़की थी, जल्द दूसरों की बातों में आने वाली थी। मावरा की सहेलियां भी कॉलेज के इसको उल्लू बनाकर खाने वाली थीं। इसे जोश दिलाकर इसके पल्ले से खा पीकर आपस में हंसती थीं। एक दफ़ा कॉलेज में एक ऐसा लड़का आया जो काफ़ी ताड़ू सा था। उससे कोई लड़का ना ही लड़की लिफ्ट करवाती थी। वो दूर अकेला बैठा सबको ताड़ता रहता। मावरा इन दिनों गांव गई हुई थी। चंद दिनों की छुट्टियां लेकर वो अचानक गांव चले गए। जब वो वापस आई तो इसकी सहेलियों ने इसे बेवकूफ़ बनाया कि वो सामने जो लड़का बैठा है वो ना किसी लड़की को लिफ्ट कराता है और ना ही किसी लड़के को। काफ़ी पैसे वाला है, मगर जानबूझकर ऐसा हुलिया बनाए रखता है कि कोई लड़की उसे दौलत की वजह से न प्यार जताए। तुम अगर उसे एक हफ्ते के लिए दोस्ती करके बता दो तो हम तुम्हें कैंटीन से अच्छी सी ट्रीट देंगे। वो एकदम जोश में आकर बोली, ये कौन सा मुश्किल काम है। मावरा ने सोचा जब वो आ रही थी तो वो उसे मुसलसल खुश होकर देखे जा रहा था। मावरा ने कहा, चलो काम आसान हो गया। मावरा ने सहेलियों से कहा कि मुझे पहले जूस पिलाओ ताकि मुझ में एनर्जी आए तो मैं उसे मोहब्बत के जाल में फंसा सकूं। एक दोस्त डर कर उसकी आदत को जानते हुए उसे समझाते हुए बोली, यार इसे फ़ोन नंबर वगैरह ना लेती देती रहना, ना ही कोई फ़ोटो वगैरह इसके साथ बनवाना, बस दूर दूर से दोस्ती रखना। मावरा ने कहा, नहीं यार, इतनी तो मुझ में भी समझ है कि ब्लैकमेल भी लड़के करते हैं। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं एहतियात करूंगी। वो लड़का किताब खोले बेंच पर बैठा हुआ था। मावरा इसके करीब जाकर बोली, आप इस कॉलेज में नए लगते हैं, पहले कभी आपको नहीं देखा। वो लड़का एक तो गरीब था, ऊपर से उसे खूबसूरत लड़की करीब आकर बातचीत कर रही थी, वरना उसे तो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा था। वो तो मावरा के मुखातिब करने पर ही खिल गया। मुस्कुराकर जल्दी से जोश में खड़ा होकर बोला, प्लीज़ आप बैठे ना। जी आपने ठीक पहचाना, मैं चंद दिन हुए इधर आया हूँ, मगर आपको भी पहले कभी इधर नहीं देखा। मावरा बेंच पर बैठकर बोली, आप खड़े क्यों हो गए हैं, बैठे ना। वो जल्दी से ज़रा फासले पर बैठ गया। मावरा ने बोलना शुरू किया कि वो अपने पापा के साथ अपने गांव किसी काम से गई थी, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टियां करनी पड़ी। वो मुसलसल दांत खोले उसे देखते हुए बोला, जी अच्छा। मावरा ने कहा कि मुझे नोट्स चाहिए थे। वो जल्दी से बोला, जी मिल जाएंगे, आप अपना फ़ोन नंबर दें, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। मावरा की दोस्त की बात याद आ गई। वो कनखियों से दूर बैठी फ्रेंड्स को देखने लगी। वो उसे ही देख रही थी। मावरा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जूस ला देंगे। उसने परस से पैसे निकालकर उसे दिए। उसने झट पकड़ लिए। मावरा सोचने लगी कि ये गुर्बत की एक्टिंग कर रहा है। वो उसे बोली, आप अपने लिए भी ले आइएगा। वो दांत निकाले खुशी से बोला, जी अच्छा। वो 2 जूस लेकर आया तो बकाया पैसे देने लगा, तो मावरा ने कहा, रहने दें। उसने एकदम खुश होकर शुक्रिया कहकर जेब में डाल लिए। मावरा थोड़ी हैरान हुई कि 1000 का नोट दिया था। वो मज़े से जल्दी से घटाघट जूस पी गया। मावरा ने देखा कि उसने पास ही ग्लास नीचे फेंक दिया। मावरा ने उसे टोका कि डस्टबिन में फेंकते हैं। वो शर्मिंदा होकर सॉरी बोलता इधर उधर देखने लगा, तो मावरा ने दूर पड़ी डस्टबिन की तरफ इशारा किया। वो बोला, आप ख़त्म कर लें, फिर दोनों फेंक कर आता हूँ। मावरा कुछ बोर होने लगी, उठकर जाने लगी तो वो झट बोला, आपको नोट्स नहीं चाहिए क्या? मावरा बोली, कल ले लूँगी। बदर उसे ढूंढती दूर से हैरत से देख रही थी कि इस लड़के के पास बैठी क्या कर रही है। जल्दी से पास आकर पूछने लगी
कि तुम इसके पास बैठी क्या कर रही थी। मावरा दोस्तों के करीब पहुंच चुकी थी। उनको सुनाने के लिए बोली, दोस्ती कर रही थी। फिर दोस्तों से बोली कि अब जल्दी से मुझे कुछ खिला दो, सख्त भूख लगी है। बदर इसके दोस्ती कहने पर हैरान हो रही थी कि बदर की क्लास शुरू हो गई और वो चली गई। मावरा के पास वो लड़का आकर रुका और बोला, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मावरा ने जल्दी से कहा, मावरा। वो बोला, बहुत अच्छा नाम है, मैं कल इंशाल्लाह आपको सारे नोट्स दे दूंगा, आप फिक्र न करना। फिर वो शौकी से बोला, आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। मावरा ने कहा, मुझे किसी के नाम याद नहीं रहते। वो फिर फ्री होते हुए बोला, आप मुझे दोस्त कह के बुला सकती हैं। मावरा उकता कर बोली, जी अच्छा, और मोबाइल खोलकर इसमें मगन जाहिर करने लगी। वो फिर उसे शौकी से देखकर बोला, आपने फ़ोन नंबर तो दिया नहीं। मावरा ने कहा कि मैं किसी को भी अपना नंबर नहीं देती, हत्ता कि अपनी दोस्तों को भी नहीं। वो दिलचस्पी से बोला, अच्छा ये सब आपकी दोस्त हैं? इसकी दोस्तें बगैर जवाब दिए उठकर कैंटीन चल पड़ी। साथ में मावरा भी चल पड़ी। वो मावरा के पीछे चल पड़ा। मावरा कैंटीन में कुर्सी पर बैठ गई। इसकी दोस्तों ने उसे बर्गर भेजा। साथ इंजॉय करने लगे कि अब ये इसकी जान नहीं छोड़ेगा। वो भी बिला तकल्लुफ इसके सामने बैठ गया और नदीदों की तरह इसके बर्गर को देखने लगा। मावरा को तरस आया, उसने उसे भी मंगवा दिया। बदर कैंटीन उसे ढूंढती हुई आई तो उसे इस लड़के के पास बैठा देखकर हैरत से बोली, ये क्या हो रहा है? वो लड़का बदर के तेवर देखकर मावरा को खुदा हाफिज कहता चला गया। बदर देखती जहां मावरा होती वो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता और उससे सलाम दुआ करने लगता। मावरा ने 1 हफ्ते का चैलेंज कबूल किया था। हफ्ते में 2 दिन बाकी थे। सब दोनों को देखकर मुस्कुराते और वो इसके साथ मशहूर होने लगे। कुछ लड़कियां हैरत से उसे देखकर आपस में बातें करती कि मावरा ने इसमें क्या देखा है। बदर सख्त परेशान थी कि मावरा इतने अच्छे लड़कों की तरफ ध्यान नहीं देती, किसी को लिफ्ट नहीं कराती। अब इस पेंडू में इसने आखिर क्या देखा है जो लालची सा भी है। मावरा उसे कैंटीन लाकर खिला पिला रही होती है। बदर के बहुत पूछने पर मावरा ने उसे दोस्तों की शर्त वाली बात बता दी। वो गुस्से से बोली, भाड़ में गई शर्त। मावरा ने बेबसी से बदर से कहा, प्लीज अब इस पेंडू से मेरी जान छुड़वा दो। बदर ने कहा, ठीक है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मावरा को प्लान बताकर वो मावरा के पास गई। मावरा इसके साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। बदर इसके पास गई और बोली, यार मावरा, मैंने राखी का ब्रेसलेट पूरी मार्केट में ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला। मावरा बोली, यार मैंने उसे भाई समझा है, पूरे कॉलेज के सामने मैं उसे राखी बांधूंगी और ये मेरा भाई होने के नाते मेरी तालीम का खर्चा उठाएगा। वो लड़का हैरत से मावरा को देखने लगा। मावरा ने लाड से कहा, मेरे भाई बनोगे ना? मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने घर में पापा को भी बताया कि मुझे मेरा भाई मिल गया है। अब वही भाई होने के नाते मेरी फीस अदा करेगा। वो लड़का हैरान होता उठा और बोला, मैं तो आपकी मदद कर रहा था नोट्स देकर। ये कहकर वो रफू चक्कर हो गया और दोबारा मावरा के साय से भी डरने लगा। इसका अफेयर पूरी क्लास में मशहूर हो चुका था। मावरा बहुत तंग पड़ती, अपनी सहेलियों से लड़ती कि ऐसी शर्त रखकर उसे क्यों उकसाया था। वो जवाब में कहती, हमें तो कोई ऐसे उकसा नहीं सकता, तुम ही बेवकूफ़ बातों में आने वाली हो। बदर उससे कहती, चलो शुक्र करो कि ये कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और हम जल्द कॉलेज से फ्री होने वाले हैं। मावरा कॉलेज से फ्री हो चुकी थी। अब वो बदर के साथ मिलकर पेपर्स की तैयारी कर रही थी। दोनों खूब दिल लगाकर पढ़ रही थी। बदर का भाई इन दोनों को लेकर जाता। जब वो आखिरी पेपर्स देकर आई तो बड़ी आज़ादी महसूस कर रही थी। दोनों प्लान बनाने लगी कि अपने गांव रहने जाएंगे। बदर के दादा दादी कभी गांव रहने चले जाते थे और छुट्टियों में बदर भी साथ चली जाती थी ताकि इनकी हेल्प कर सके। कॉलेज से फरागत के कुछ ही दिन गुजरे थे कि मावरा ने देखा कि उसके वालिदैन आपस में लड़ रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो इस शिद्दत से लड़े थे, वरना मावरा की मामा ही इसके पापा को सुनाती रहती थी और वो खामोशी से बगैर जवाब दिए सुनते रहते थे और इसकी मामा बोल बोल कर खुद ही चुप हो जाती थी। मगर आज तो पापा भी गरज रहे थे। मावरा भागकर बदर को बुला लाई। वो, इसकी अम्मी और भाभी भागती आ गए। इसके पापा बता रहे थे कि उन्होंने गांव में अपनी पुरानी बचपन की मंगेतर से चंद माह पहले निकाह कर लिया था, क्योंकि इसके वालिदैन वफात पा चुके थे और वो वालिदैन के कहने पर उसे सहारा देना चाहता था। इसके वालिद की चंद माह पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। वालदा कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी।
मावरा की माँ ना तो इसकी माँ की वफात पर गई थी, ना ही इसके वालिद की वफात पर गई थी, और मावरा के पेपर शुरू होने वाले थे, वरना वो बाप के साथ गांव जाना मिस नहीं करती थी। कॉलेज से छुट्टियां कर लेती थी, मगर अब पेपर्स की मजबूरी थी। मावरा बाप की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई कि इतनी अहम बात में उसके बाप ने उसे शामिल नहीं किया। उसने बाप को गिला किया कि आपने मुझे नहीं बताया, तो वो सफाई देते हुए बोले, मैं तो रफ़िया के बाप की फौतगी पर गया था, तुम्हारे पेपर्स चल रहे थे, तो वालदैन और अजीज़ रिश्तेदारों ने कुल पर ही सादगी से मेरा उससे निकाह करवा दिया। मैंने अगर दूसरी शादी उससे करनी होती तो जवानी में ही कर लेता, मगर अब मजबूरी थी। मैं उसे बेआसरा नहीं छोड़ सकता था, जो मेरे नाम पर बैठी रही और शादी न की। माँ ने मैके में फ़ोन करके रिक्शा किया और बैग में कपड़े डालकर चल पड़ी। मावरा ने रोते हुए उसे बहुत रोकने की कोशिश की। बदर की माँ ने भी पकड़ कर कहा, बहन जो होना था हो गया है, आप अपना घर छोड़ने की गलती ना करें। वो एक झटका उसे देकर तेजी से बाहर निकल गईं। बदर के भाई और अब्बू भी आ गए तो मावरा के बाप ने रोते हुए कहा कि इस औरत के पीछे मैंने वालदैन को नाराज करके रखा, उनको अपने से दूर रखा, मगर अब ये मेरी मजबूरी समझ नहीं रही। मेरी दूसरी बीवी रफ़िया प्रेग्नेंट है, अब उसे शहर के हॉस्पिटल में दिखाना है, उसकी तबीयत सख्त ख़राब है, मुझे फ़ौरन उसे शहर लेकर आना है। मावरा बच्चे का सुनकर एकदम खुश होकर बोली, पापा मैं आपके साथ जाऊंगी और रफ़िया आंटी को। बाप ने टोकते हुए कहा, अब वो तुम्हारी छोटी मामा है, चलो तैयार हो जाओ, जल्दी निकलना है, पहले ही देर हो चुकी है। मावरा ने बदर को देखा और मुस्कुरा दी। मावरा जब गांव पहुंची तो दादी से पहले रफ़िया को जाकर मिली। इसका 7वां माह चल रहा था, वो काफ़ी बीमार लग रही थी। उसे देखकर खुश होकर मुंह पर प्यार करके मिली। इससे पहले भी रफ़िया बहुत अच्छी लगती थी, इसके साथ वो गपशप लगाती रहती थी, उसकी एक तरह से सहेली थी। मावरा की माँ को उसका घुलना मिलना पसंद न था। मावरा के बाप ने वालदैन को भी ज़बरदस्ती चलने का कहा। वो मुरव्वत में बोले, बहू कहेगी मैदान खाली देखकर कब्जा करने आ गए, मौके से फ़ायदा उठा लिया। मावरा के बाप ने कहा कि दुनिया में सबसे पहला हक इस घर पर, मुझ पर, आप लोगों का है। अब मैं इस उम्र में आपको इधर अकेले नहीं छोड़ सकता, बहुत कोताही कर ली। मावरा ने भी मजबूर किया तो सब चल पड़े। जिस कमरे पर नाना नानी कब्जा जमाए रखते थे वो दादा दादी को दे दिया गया। जिसमें मामू रहते थे वो मावरा के बाप ने रफ़िया को दिया और खुद भी इधर शिफ्ट हो गए। मावरा की माँ का कमरा जूं का तू रहने दिया। डिलीवरी तक मावरा ने रफ़िया की बहुत देखभाल की। बदर के घर वाले बहुत ख्याल रखते और साथ देते। मावरा ने शुरू में माँ को कॉल की, मगर उसने जवाब में काट दी तो दोबारा उसने न की। मावरा और रफ़िया दोस्त बन चुकी थीं। मावरा को अपने बहन भाई के आने का शिद्दत से इंतज़ार था। वो इसके लिए बड़े जोशो जज्बे से शॉपिंग कर रही थी। वो इस हालत में भी पूरे घर को संभाल रही थी। हांडी खुद पकाती, सास ससुर की भी खिदमत करती और शोहर का भी ख्याल रखती। हालांकि दिन रात के लिए पुरानी मुलाजमा मौजूद थी जो रफ़िया से बहुत खुश थी, क्योंकि वो प्यार से बात करती थी, जबकि मावरा की माँ डांट डपट करती और जलील करती रहती थी। आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और मावरा का भाई पैदा हुआ। इसके बाप ने बहुत खुशी मनाई और रफ़िया को सोने का सेट गिफ्ट किया और इसके नाम बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया। पूरे ख़ानदान में मिठाई भेजी, सब ने आकर गिफ्ट्स भी दिए और बहुत मुबारकबाद भी दी। रफ़िया बहुत खुश थी। अचानक अच्छा रिश्ता आ गया और मावरा का रिश्ता तय हो गया। मावरा की माँ जिन मैके वालों पर लुटाती रही वो उसे अब पाल न सके और बोझ समझने लगे। तब मावरा की माँ को अपनी जन्नत याद आने लगी। दिल में शर्मिंदगी होने लगी कि जितना प्यार और तवज्जो अपने मैके वालों को देती रही, काश वो अपना फरिश्ता सिर्फ सास ससुर को देती। वो अचानक घर वापस आ गई और सास ससुर से माफ़ी मांगी। रफ़िया से भी माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आऊँगी, बस सास ससुर और अपने शोहर के बच्चे के लिए जीऊँगी। मावरा बहुत खुश हुई। सास ससुर ने उसे गले लगा लिया। शोहर ने वार्निंग दी कि मुझे घर में सुकून चाहिए। जैसे यहाँ चल रहा था उसने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी। मावरा की शादी हुई तो उसका शौहर उसे बहुत अहमियत देता और प्यार करता। बदर ने मावरा की दावत की। बदर के घर वालों ने उसके शौहर को भी बहुत इज्जत दी। बदर उसे जीजा जी कहकर छेड़ती रही। उसने मावरा के शौहर का फ़ोन नंबर ले लिया कि वो अब अक्सर फ़ोन नहीं उठाती, ना ही कॉल बैक करती है, इसकी खैर खबर आपसे पूछ लिया करूँगी। 1 साल गुजर गया, दूसरा साल भी चढ़ाया। मावरा के सास ससुर उसे ताने देते कि हमारा इकलौता बेटा है, इसका बच्चा पैदा करो। वो शौहर को लेकर सारे टेस्ट करवाने लगी।
जब शौहर घर आया तो उसने टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो बोला सब टेस्ट ठीक हैं। उसके शौहर को बदर फ़ोन करके हाल अहवाल पूछती रहती। मावरा तो अब उससे कॉल भी ना करती, ना उसकी कॉल पिक करती। इसकी वजह ये थी कि उसका शौहर जब से बदर के घर की दावत खा कर आया था हर बात में उसकी तारीफ करने लगा, जिसकी वजह से उसे बदर से नफरत होती जा रही थी। इसके सास ससुर भी जब से बदर के घर से दावत खा कर आए थे बदर के कसीदे पढ़ने लगे थे। उसे बच्चा न होने के हर वक्त ताने भी देते रहते थे। एक दिन वो मैके गई हुई थी कि उसकी माँ ने बताया कि लगता है बदर के घर में कोई फंक्शन हो रहा है। तुम्हारे अब्बू से भी पूछा मगर वो भी टाल गए। न जाने हमसे क्यों छुपा रहे हैं। तुम्हारे पापा ने कहा है कि अगर वो छुपा रहे हैं तो कोई इनसे जाकर न पूछे। मावरा ने अपनी बालकनी से झांक कर देखा तो उसका शौहर दुल्हा बना बदर के हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ लेकर जा रहा था। वो तो सकते में आ गई, रोती चलाती नीचे आई, माँ को सारी बात बताई तो माँ दिल पकड़ कर बैठ गई और गिरती चली गई और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ गई। बदर के घर वाले भी आए। मावरा के घर वाले उनसे पहले की तरह मिले, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका शौहर भी आया और बदर भी आई। मावरा उसे कुछ सुनाने लगी तो उसने उसके कान में धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे लड़ाई की तो मैं तुम्हारे कॉलेज के अफेयर के बारे में तुम्हारे शौहर को सब बता दूंगी। मावरा मजबूर हो गई। उसके सास ससुर उसे 40वें की बात लेने आए तो वो झट जाने के लिए तैयार हो गई। उसे माँ की बातें याद आने लगी कि शौहर का घर कभी मत छोड़ना, वही अपना असल घर होता है। चाहे जैसे भी हालात पेश आएं, शौहर 4 शादियां भी कर ले, मैके में रहने में इज्जत नहीं, ससुराल की जूतियों में भी इज्जत है। 40 दिन रहकर उसने देख लिया कि सब बदर के घर वालों से इसी तरह घुल मिल कर रह रहे थे। पापा तो अब अपनी नई बीवी और बच्चे के दीवाने थे, इसकी तरफ ध्यान न देते बल्कि पूछते कि कब घर वापस जाना है। बेटी मैके में ज्यादा रहना ठीक नहीं होता। वो शौहर की दूसरी शादी का गिला करती तो वो कहते इसने कोई गुनाह का काम नहीं किया। उसे माँ की बात याद आ जाती कि सोकन बर्दाश्त करना मुश्किल है मगर मजबूरी में सब करना पड़ता है। जब वो घर पहुंची तो इसके शौहर ने मुस्कुराकर उसे वेलकम किया। उसके कमरे के साथ बदर का कमरा था। सास ने उससे कहा कि 1 हफ्ता वो बदर के पास रहेगा और 1 हफ्ता तुम्हारे पास। इस बात पर घर में मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, सुकून से सोकन के साथ ताउन से रहो। वो अब इतनी मजबूर हो चुकी थी कि माँ मर चुकी थी, भाई भी कोई ना था, बाप भुला चुका था। घर में अब सौतेली माँ का राज था। ननियाल वाले उसकी माँ को सहारा न दे सके तो उससे क्या देते। वो दिन ब दिन बदर से नफरत करने लगी। जब बदर की बारी आती तो उसे बहुत दुख महसूस होता मगर वो कुछ कह न सकती। शौहर बदर के आ जाने से बहुत खुश था। सास ससुर भी बहुत खुश थे क्योंकि वो इनकी भी खिदमत करती रहती। उसे ये सोचकर ही हैरानगी होती कि क्या सहेलियां ऐसी होती हैं। इसके पापा ने भी उसे सख्ती से मना किया था कि कोई गिला न करना। इसे बाद में पता चला था कि सवाए उसके और उसकी माँ के, मावरा के पापा, सौतेली माँ और दादी दादा को भी बदर की शादी का इल्म था मगर ना ही उन्होंने इस शादी को रोकने की कोशिश की और ना ही उन्होंने उसे बताना ज़रूरी समझा। ये तो उसे घर की मुलाजमा ने बाद में बताया था। इसकी माँ अपनी सौकन का गम तो बर्दाश्त कर गई मगर बेटी की सौकन का गम ना बर्दाश्त कर सकी। मावरा को इतना गुस्सा आया जब उसका शौहर बदर के साथ बाहर से आया। दोनों हंसते हुए कमरे में चले गए। मावरा ने गुस्से में खाने में चूहे मार गोलियां डाली और बदर दही शौक से हर खाने के साथ खाती थी और उसका शौहर दही ना खाता था। मावरा ने दही में जहर मिलाया और मुलाजमा से बोली कि वो खुद खाना लेकर जाएगी। कमरे का एक दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। उसे अंदर से बातों की आवाज़ आई और अपना नाम सुना तो इधर ही झुककर खड़ी हो गई, सुनने लगी। बदर शौहर से रोते हुए कह रही थी कि मेरी प्यारी दोस्त मुझसे बदजन हो चुकी है। मैं कितनी बेबस हूँ कि अपनी सफाई भी नहीं दे सकती। उसे कैसे बताऊँ कि ये सब मैंने उसी के लिए किया है। उसके घर वालों को भी जब सारी सच्चाई बताई तो वो भी मेरी आपसे शादी करने पर खुश हो गए। इसे कैसे बताऊँ कि वो बांझ है। इसकी रिपोर्ट में लिखा है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अगर मैं आपसे शादी न करती तो आपके वालिदैन ने आपको धमकी दी थी कि वो हर हाल में अपने बेटे की शादी कर देंगे। मैं जानती हूँ कि मावरा से आप बहुत प्यार करते हैं और मावरा को ये नहीं बता सकते कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने भी उसी की मोहब्बत में आपसे शादी की है कि कोई और औरत आ गई तो हो सकता है वो मावरा से बुरा सलूक करे और एक दिन उसे घर से निकाल दे। फिर वो कहाँ जाएगी। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रही
कि मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और वो ये सुनकर शायद हर्ट होगी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकी। ये बातें सुनते ही मावरा के पांव तले से जमीन खिसक गई। इसके हाथों से खाना गिर गया, दही का प्याला गिर कर टूट गया। वो दौड़कर अंदर चली गई। बदर और उसका शौहर शोर सुनकर हैरान हो रहे थे। उसे अंदर आता देखकर हैरान हुए। उसने आते ही बदर को रो रो कर गले लगाकर चूमना शुरू कर दिया और माफ़ी मांगने लगी और बोली, तुमने मेरे लिए एक शादीशुदा से शादी करके कुर्बानी दी और मैं तुम्हारे प्यार पर शक करती रही। तुम मेरे शौहर के बच्चे की माँ बनने वाली हो, यानी मैं भी इसकी माँ कहलाऊंगी, चाहे सौतेली ही सही। बदर ने उसे रोते हुए तसल्ली दी। शोर सुनकर सास ससुर भी आ गए। मुलाजमा फर्श साफ करने लगी। मावरा ने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि उसने उसे एक बहुत बड़े गुनाह से बचाकर उसका पर्दा रख लिया। वह बदर की बहुत ज़्यादा देखभाल करने लगी। वो बदर से बोली, तुम जानती हो ना कि मुझे बच्चे कितने पसंद थे। मैं दूसरों के बच्चों पर प्यार लुटाती थी। ये तो मेरा बच्चा होगा, मुझे बड़ी मामा कहेगा, मेरे कानों में रस खुलेगा। बदर शिद्दत जज्बात से बोली, मैं तो सिर्फ इसे पैदा करूंगी, पालने का काम तुम्हारा होगा। आखिर वो दिन भी आ गया। बदर ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसने कहा, देखो अब एक बच्चा तो तुम ही पालोगी। वो इसे गोद में लेके बेख्तियार रोते हुए चूमने लगी और बोला, मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा। बदर और इसका शौहर उसे नम आंखों से देखकर खुश होने लगे। मावरा ने ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा किया और उसकी देखभाल में मगन हो गई। बदर से कहती, मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा सेहतमंद है क्योंकि मैं अपने बच्चे की ज़्यादा अच्छी देखभाल करती हूँ। जवाब में वो मुस्कुरा देती और उनका शौहर दोनों का प्यार देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता।